afternoon, students. Before these classes, we have discussed about the reproduction in plants. Reproduction in plants, we all have studied about autotrophic and heterotrophic nutrition, as well as the definition also, and the importance of photosynthesis we have discussed. Students, today we have and we will study about reproduction in plants chapter, role of leaves in photosynthesis. Students, first we have to understand about लीव्स का रोल फोटोसिंथेसिस में क्या है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस क्या क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में इसका रोल क्या है, उसके बारे में हम आप पढ़ेंगे। सो रोल मीन्स जस्ट लाइक द फंक्शन। फंक्शन में दिया हुआ है कि they have stomata which help them to take in the carbon dioxide. क्लियर है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रीन लीव्स होते हैं ये क्या करते हैं कि CO2 गैस, ये जो CO2 गैस देख रहे हैं इसमें लेने में मदद करता है। बिकॉज टेकिंग CO2 गैस, photosynthesis process is not completed. You know very well about this. So this is the first function, and second function, the stomata release oxygen. ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, हम आप जानते हैं, जो ऑक्सीजन हम आप लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे माध्यम से जो रिलीज होता है वह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करता है। आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस, दिस इज द क्वेश्चन। द प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द स्टोमाटा रिलीज ऑक्सीजन। Then next function, the next function is they have chlorophyll. Students, we know very well about chlorophyll. Any green leaves, chlorophyll is just like green pigment, green substance found in leaves. So this is the function of leaves, which helps to capture the sunlight. Capture the sunlight. कहने का सेंस है ये लीव्स जो है सनलाइट को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। जिसमें भी क्लोरोफिल होगा निश्चित रूप से वह सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। क्लियर? तो जितने भी ग्रीन लीव्स होंगे उसमें निश्चित रूप से ग्रीन सब्सटेंस होगा। इसी ग्रीन सब्सटेंस को हम आप क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल जो है क्या करता है कि सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, तब ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। नाउ स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन, दे आर देयरफॉर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। क्लियर है कि जितनी भी क्लोरोफिल हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो फूड तैयार करता है, इसलिए हम इस लीव्स को, इस ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं। दिस इज जस्ट लाइक द किचन ऑफ द प्लांट, वी कैन से जस्ट इन प्लेस ऑफ दिस। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, just now we have studied about the role of leaves in photosynthesis. Then just after we have to study about the differences between autotrophic and
heterotrophic nutrition. We have studied just before this the definition only, but after this we are going to study about autotrophic and heterotrophic nutrition में डिफरेंस क्या है, थोड़ा हम आप इसको बारे में समझें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द autotrophic nutrition and this is heterotrophic. Students, we all know about autotrophic nutrition. This process is completed by only green plants. We know every green plants which prepare their own food, they are called autotrophs. We can say just in place of this autotrophs the other name of food producer. This is food producer, autotrophic nutrition, जिसको हम आप ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स फूड प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है और इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फूड कंज्यूमर कहते हैं। अब आइए कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन which type of function is completed. This type of nutrition takes place in green plants. Students, autotrophic nutrition process is completed only in green plants, but autotrophic nutrition, this process is completed only in non-green plants. Clear? Heterotrophic nutrition is completed only in non-green plants, and autotrophic nutrition, this type of nutrition takes place in only green plants. Now second, solar energy is required for use. हम आप जानते हैं कि अगर ग्रीन प्लांट्स है तो निश्चित रूप से इसको सोलर एनर्जी चाहिए, इसको सोलर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। हम आप इसको सोलर एनर्जी का ये जो ग्रीन प्लांट्स है इसका यूज करता है, तभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वन थिंग लर्न, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। इन ऑटोट्रॉफिक solar energy is required, clear? And heterotrophic nutrition में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो बॉडी में होता है। एनर्जी प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फूड मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। We all have studied in first chapter and first classes, first lecture about raw materials. Raw materials are sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide. These are four raw materials. All raw materials, ये जिस raw materials के माध्यम से ये फूड तैयार होता है, फूड बनता है। और इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखिए कि फूड ऑब्टेन होता है, यहाँ फूड प्राप्त किया जाता है। क्यों? यहाँ फूड प्राप्त इसलिए किया जाता है, फूड प्राप्त होता है एनिमल्स के माध्यम से। एनिमल्स के माध्यम से होता है फूड तैयार, प्राप्त किया जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। लेकिन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये रॉ फॉर मटेरियल्स का यहाँ पर तैयार किया जाता है, जैसे सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, डाइजेस्टिव प्रोसेस इज एब्सेंट। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है ये नहीं पाया जाता है बच्चों, लेकिन इसमें जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है प्रेजेंट, मतलब आप जानते हैं कि इसमें पाया जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है
ये भी लाइफ प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, डाइजेशन। इसलिए न्यूट्रिशन में हम आप लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी जैसे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर कंप्लीट, तो ये भी लाइफ प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में यहाँ नहीं होता है, लेकिन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, differences in autotrophic and heterotrophic, and the last point is, students, it is found in green plants. You know very well, autotrophic nutrition only green plants में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन अलगी, ये अलगी जो होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए, नॉन ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन अगर होता है तो समझिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा, पाया जाएगा। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन अलगी में पाया जाता है, और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो हमने स्टूडेंट पढ़ा कि ये जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन अलगी एंड ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। कहने का सेंस, जितना भी ग्रीन सब्सटेंस है, चाहे वो अलगी हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, इन सारे टाइप्स में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। एंड स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इट इज फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। दिस इज द डिफरेंस in autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition is found in green plants, but heterotrophic nutrition is found in non-green plants. Non-green plants like fungi. फंगी का आप नाम जानते होंगे। ये non-green plants को हम फंगी कहते हैं। ये बैक्टीरिया, ये non-green होना चाहिए। और जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स हम आप जानते हैं कि खुद से भोजन नहीं बनाता है, ये एनिमल्स दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसलिए ये नॉन ग्रीन प्लांट्स भी अपना भोजन नहीं बनाता है। तो ये सब जो है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आ जाता है। नाउ द स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड टुडे इन सेकेंड लेक्चर अबाउट द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। Today we have studied what? We have studied about role of leaves in photosynthesis and the differences between autotrophic and heterotrophic. Now the students, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, and the next chapters and the next topics we will discuss about the next day. So I am going to rest my pen and अब इसके बाद जो है ये जितने भी हैं जो हमने पढ़ाया इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। और इफ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर दैट आई हैव स्टडीड टिल नाउ, then you must call by this number. This is the helpline and this is my number, so you can contact. आज भर के लिए इतना ही।